Assalamu alaikum, dear students. Today we will start week number 3, lecture number 5 and 6, where we will discuss how to capture value from customer. But before this, we will study choosing the right value proposition and marketing management orientation. So let's start with the right value of value proposition. You can see a picture here where there is a small car and there is a relatively big car. So this car, for example, in our society or in Pakistani market, we can say that this is Prado and this car is, for example, let's call this Mehran. So what should be or what would be the value proposition for Mehran and what would be the value proposition for Prado? For example, when we go to the showroom of Suzuki and we ask the qualities or when we ask the attributes of Mehran, they would say, or the marketing manager or Suzuki salesman or salesperson will say or would say that Mehran is cheap, fuel is very economical, okay, and its spare parts are available very easily. So these are, and this is, so this car has resale value. So these are the points which basically suits this car, where the car is resaleable, the car is relatively cheaper, fuel is very economical. In 1 liter this car can travel to about 20 kilometer and more than 20 kilometer, and the spare parts are very cheap and very easily available. On the other hand, there is a car, and when we go to the showroom of Toyota and we ask the qualities of Prado, then they would say that this is a luxurious car. Okay, this has very good sensors. Its computer is very excellent. Its sensors are good. Its gear shifting or its gears are very good. It is 4x4 car and its AC is excellent, वगैरह वगैरह. So these would be the points which will be focused by the salesman or sales officers or sales teams while telling the attributes of Prado. So students, whenever we launch our product or whenever we offer any product for customers in the market, we see or we have to choose a value proposition which should be suitable for the product. I hope this is clear. So here Prado salesman would not say that Prado spare parts are very economical and fuel is very economic and this car is very cheap, वगैरह वगैरह. And the salesman of Mehran would not say that Mehran's AC is excellent and Mehran is very luxurious and its sensors are working very good and it is 4x4 gears. So every product has unique value proposition, and value proposition would be something that is delivered to customers and which is not delivered by the competitors. If we just look at this picture and let's have a look on the conversation these both cars have.
सो स्टूडेंट्स, ये जो कार है इसमें मेरा प्राडो बोलती है मेहरान को कि नो वन टेक्स मी आउट, कि मुझे तो कोई खरीदता ही नहीं है। ठीक है। नंबर 2, मेहरान उसको जवाब के दे रही है यू ड्रिंक टू मच, तुम बहुत ज्यादा पीती हो। व्हाट डज इट मीन कि जनाब आपकी गाड़ी, आप जो है वो फ्यूल बहुत ज्यादा कंज्यूम करती हैं, तो लोग इस वजह से आपको नहीं खरीद रहे। इट मीन्स कि दे हैव चूजन द राइट वैल्यू ऑफ प्रोपोजिशन। सो प्राडो को जब हम सेल करेंगे तो फ्यूल इकोनॉमी वुड नॉट बी द वैल्यू प्रोपोजिशन, फ्यूल इकोनॉमी वुड बी द प्रोपोजिशन ऑफ Mehran, and luxury and good AC would not be the value proposition for Mehran. This would be the value proposition for Prado. So this is something, and this is all what we had to discuss about value proposition. And we can have any value, proposition related to our product, and whenever we launch a product, we should give some proposition or some value which is unique, which is superior, and something which is not offered by the competitors. Let's come to the other slide, and in other slide we have marketing management orientation. What is marketing management orientation? Students, we have many marketing strategies. Okay, we have so many marketing strategies, and marketing strategies or marketing philosophies, but we have to follow, or one company has to follow only one value proposition or only one marketing strategy. Here in marketing management orientation, we have 5 different marketing strategies or marketing philosophies, and any company can follow any one of these 5 categories or strategies or philosophies. ठीक है जी। अब थोड़ा सा हम आगे आते हैं। ये 5 जो स्ट्रेटेजीज हैं वो कौन सी हैं? पहले नंबर पे आएगी आपकी प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, दूसरे नंबर पे आएगा आपका प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, तीसरे नंबर पे आएगा आपका सेलिंग कॉन्सेप्ट, चौथे नंबर पे आएगा मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, और 5वें नंबर पे आएगा सोसाइटल कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि कोई भी कंपनी जो है, अगर वो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट के ऊपर बिलीव करके प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट की फिलॉसफी को लेके आगे चलेगी, तो उसमें उनको क्या करना होता है। व्हाट इज प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट? प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने से पहले मैं एक चीज आपको बता दूं कि आप लोगों ने कहीं पहले पढ़ा होगा या आपने सुना होगा कि देयर इज अ टर्म कॉल्ड बल्क प्रोडक्शन या मास प्रोडक्शन, और इनके अलावा एक और लफ्ज स्टूडेंट्स इस्तेमाल किया जाता है, और वो है इकोनॉमी ऑफ स्केल। इन सब का मतलब क्या है? इन सब का मतलब ये है इन सब का मतलब है बल्क प्रोडक्शन या मास प्रोडक्शन या इकोनॉमी। इन सब का मतलब ये है कि जब हम when we produce large number of units, our per unit cost decreases। होता यह है कि जब हम थोड़ी तादाद में चीज बनाएंगे तो हमारी पर यूनिट कॉस्ट ज्यादा आएगी, और जब हम ज्यादा चीज प्रोड्यूस करेंगे तो ज्यादा चीजें प्रोड्यूस करने से हमारी पर यूनिट कॉस्ट कम आ जाएगी। तो यही वजह होती है कि कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जो हम बहुत ज्यादा तादाद में बनाते हैं। चूंकि हम बहुत ज्यादा तादाद में बनाते हैं, तो उस बहुत ज्यादा तादाद में हमारी प्रोडक्ट्स बनाने से हमें ये फायदा होता है कि हमारी जो कॉस्ट आती है प्रोडक्ट को सेल बनाने में, वो कॉस्ट कम लगती है। जब हमारी कॉस्ट जो है वो
मिनिमम आती है, तो उस मिनिमम कॉस्ट के नतीजे में फिर जब हम लोग प्रॉफिट मार्जिन रखकर प्राइस डिसाइड करेंगे, तो वो जो प्राइस होगी वो भी रिलेटिवली लो होगी। समझ आ गई? इट मीन्स कि when we are producing a large number of quantity of a product, then our cost decreases, and with a decreased or minimum cost we set a profit margin, and the price we set for the product, it is also very low. तो ये जो प्राइस भी हम लोग लो ले आते हैं और हमारी जो पर यूनिट कॉस्ट भी कम लगती है, तो इससे ये होता है कि जब प्रोडक्ट कम प्राइस पे मार्केट में जाती है तो कस्टमर ज्यादा खरीदते हैं। इसका मतलब है कि कस्टमर ये प्रोडक्ट ज्यादा इसलिए खरीद रहे हैं कि इसकी प्राइस कम है, और जो कम प्राइस होती है, ये कम प्राइस होती है, ये अफोर्डेबल होती है हमारे कस्टमर के लिए। तो वो प्रोडक्ट जो हमारे कस्टमर के लिए अफोर्डेबल होती है, वो कस्टमर्स बार बार खरीदेंगे और ज्यादा तादाद में खरीदेंगे। तो इसका मतलब ये है कि हमारी प्रोडक्ट इसलिए बिक रही है कि हम बहुत ज्यादा तादाद में प्रोडक्ट बना रहे हैं, और बहुत ज्यादा तादाद में प्रोडक्ट बनाने के साथ साथ हम लोग सस्ती प्रोडक्ट बना रहे हैं। इसकी एग्जांपल अगर हम लोग लें, जी स्टूडेंट्स, इसके अगर एग्जांपल लें तो हमारे जो नोट्स हैं उसमें जो एग्जांपल दी गई है वो डेल की दी गई थी। डेल के जो पीसीस थे, डेल वालों ने सोचा कि हम बहुत ज्यादा तादाद में अपनी प्रोडक्ट सेल करेंगे, तो वो बहुत ज्यादा तादाद में सेल करने के लिए उन्होंने बहुत ज्यादा तादाद में प्रोडक्शन की, और उस बहुत ज्यादा प्रोडक्शन को इतना ज्यादा कम प्राइस के अंदर मार्केट में सेल कर दिया कि हमारे जो कस्टमर्स थे इनके, वो सारे के सारे कस्टमर्स के लिए डेल के पीसीस खरीदना अफोर्डेबल हो गया था, और वो बहुत ज्यादा तादाद में डेल ने राज किया कंप्यूटर की मार्केट में, और खासतौर पे पीसीस की मार्केट में। सो इट मीन्स दैट वी प्रोड्यूस लार्ज क्वांटिटी, मास क्वांटिटी, एंड लार्ज एंड मास क्वांटिटी से कंपनी को एक फायदा तो ये होगा कि कॉस्ट कम आएगी, और कम कॉस्ट पे प्रॉफिट मार्जिन जो भी आप रख के अगर आप कम प्राइस पे चीज सेल करेंगे, तो कस्टमर जो है उसमें उसको परचेज करने में कस्टमर्स के लिए अफोर्डेबल होगा। अब एक चीज और इसमें इंपॉर्टेंट है जो कि हम लोगों को देखनी है, वो ये देखनी है कि वो प्रोडक्ट जो हमारी प्रोडक्ट जिसमें हम प्रोडक्शन के ऊपर फोकस कर रहे हैं और हम बहुत ज्यादा चीज प्रोड्यूस कर रहे हैं ज्यादा तादाद में, इसमें हमारी जो प्रोडक्ट है उसके अंदर अपग्रेडेशन बहुत ज्यादा नहीं होती। ठीक है, बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स जो है वो अपग्रेड नहीं होती, नई नई चीजें उसके अंदर ऐड नहीं होती, बहुत कम चेंजेस होती हैं। अपग्रेडेशन से मुराद प्रोडक्ट की प्रोडक्शन के अंदर किसी किस्म की चेंज या बहुत ज्यादा किस्म की चेंज नहीं होती। तो पहला कॉन्सेप्ट है कि हमारी कंपनी जो है वो एक ऐसी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को चला रही है या एक ऐसी मार्केटिंग फिलोसफी के ऊपर काम कर रही है जिस मार्केटिंग फिलोसफी या जिस मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को हम बोलेंगे प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। तो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है कि जब कंपनी बहुत ज्यादा तादाद में मास प्रोडक्शन करेगी और कंज्यूमर्स के लिए प्रोडक्ट जो है वो अफोर्डेबल होगी। जैसे इट प्रोडक्शन इज द आइडिया दैट कंज्यूमर विल फेवर प्रोडक्ट्स दैट आर अवेलेबल और हाईली अफोर्डेबल। ऐसी प्रोडक्ट्स जो अवेलेबल है, ज्यादा तादाद में बन रही हैं तो इसलिए अवेलेबल है, और नंबर 2 चूंकि मास प्रोडक्शन की वजह से कॉस्ट कम लग रही है तो वो कम प्राइस पे सेल की जा रही है। ठीक है जी, अगला जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट है हमारा प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट। ये फिलॉसफी कुछ कंपनीज अडॉप्ट करेंगी। इस प्रोडक्ट से मुराद ये है कि वक्त गुजरने के साथ साथ लोग कहेंगे कि हमने अपनी जो प्रोडक्ट है उसको हम लोगों ने अपडेट करना है, या उसको हम लोगों ने अपग्रेड करना है। या अपडेट या अपग्रेड करने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट के फीचर्स ऐड करने पड़ेंगे, प्रोडक्ट के कुछ एट्रीब्यूट्स वो मजीद ऐड करने पड़ेंगे, डिजाइन के अंदर कोई चेंज आ जाएगा। ठीक है, किसी न किसी
उसकी क्वालिटी के अंदर कुछ चेंज आ जाएगा, उसके कलर के अंदर, उसके साइज के अंदर किसी ना किसी चीज में हम चेंज ले आएंगे। जब हम प्रोडक्ट में चेंज लेके आ रहे हैं तो जब चेंज लाते हैं तो चेंज से मुराद ये होता है कि वो प्रोडक्ट जो हमारी पहले थी उस प्रोडक्ट से अब हमारी प्रोडक्ट बेहतर है और उससे जरा एडवांस्ड है। इसकी मैं एग्जांपल अगर आपको दूं तो आज से कुछ अर्सा पहले सैमसंग ने दे लॉन्च्ड अ मोबाइल कॉल्ड सैमसंग गैलेक्सी ग्रैंड प्राइम, सैमसंग गैलेक्सी ग्रैंड प्राइम। और जब कुछ वक्त गुजरा और लोगों ने यूज किया तो उन्होंने ये महसूस किया कि ये जो प्रोडक्ट है ये बहुत ज्यादा हैंग हो जाती है। जब ये सिस्टम बहुत ज्यादा हैंग हो जाया करता है तो सैमसंग वालों ने कुछ साल, 1.5 साल, 2 साल के बाद या शायद 1 साल के बाद उन्होंने एक नई प्रोडक्ट लॉन्च कर दी, इसी को अपडेट करके सैमसंग गैलेक्सी ग्रैंड प्राइम प्रो। ग्रैंड प्राइम प्रो, तो उस प्रो के अंदर उन्होंने कुछ ऐसे फीचर्स ऐड कर दिए, उन्होंने क्वालिटी में कुछ ऐसा एडिशन किया कि जिसकी वजह से अब ये जो हैंग हुआ करता था वो नहीं हुआ करेगा। इट मींस कि कुछ लोग समझते हैं कि जैसे कि पुरानी प्रोडक्ट्स थी हम वैसी प्रोडक्ट्स नहीं चलाएंगे, वक्त गुजरने के साथ साथ इंप्रूव करेंगे। और ये प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट जो है, ये जो भी टेक्नोलॉजी वाली कंपनीज हैं वो सारी की सारी कंपनीज जो हैं वो इस प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट को लेके आगे चल रही हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम लोग बात करते हैं एप्पल की और एप्पल के आईफोन्स की, तो आईफोन जो है वो स्टार्ट हुआ था आईफोन सिंपल से, फिर 3, फिर 3GS से करते करते अभी 13 मैक्स प्रो इस तरफ आ चुका है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये अपने आप को अपडेट कर रहे हैं। प्रोडक्ट्स इज बीइंग अपग्रेडेड एंड अपडेटेड with the passage of time. So this is called प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। इसी तरीके से जो रेफ्रिजरेटर बनाने वाली कंपनीज हैं, मिसाल के तौर पे डॉलन्स, उन्होंने अब अपनी फ्रिज बनाने की जो फॉर्मूला था या फ्रिज बनाने के जो एट्रीब्यूट्स हैं, जो उनके जो क्वालिटीज हैं और क्वालिटी के अंदर जो फैसिलिटीज और जो क्या कह सकते हैं हम लोग, जो वो फैसिलिटीज दे रहे हैं फ्रिज के अंदर और जो क्वालिटीज वो दे रहे हैं या उसके अंदर जो फीचर्स दे रहे हैं, उसके अंदर वो अब वक्त गुजरने के साथ साथ चेंजेस कर रहे हैं। सो ब्रिंगिंग सम चेंज इन द करंट प्रोडक्ट, नंबर 1, और नंबर 2, ब्रिंगिंग न्यू प्रोडक्ट इन द मार्केट इज कॉल्ड प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट मीन्स Number 1, bringing change in current product, and number 2, bringing new product in the market। इसी तरीके से प्रोडक्ट डेवलपमेंट में आपके सामने आएगा एरियल। एरियल के बारे में हम सोचते हैं कि एरियल जो है अब उसके बारे में कहते हैं कि अब न्यू फॉर्मूला के साथ, ये जो न्यू फॉर्मूला आया है ये कहलाएगा प्रोडक्ट डेवलपमेंट। इसी तरीके से डालडा, अब डालडा VTF, ये जो VTF फॉर्मूला है ये कहलाता है प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। इसी तरीके से स्टूडेंट्स एक और प्रोडक्ट हम लेके आते हैं जिसमें हम कहते हैं कि सर्फ एक्सेल, जो कपड़ों के दाग जो हैं उनको रेशो तक जाके सफाई करेंगे। तो इट मींस कि वी आर ब्रिंगिंग सम न्यू इंग्रेडिएंट्स इन आवर प्रोडक्ट विद न्यू एंड एफिशिएंट प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी इन आवर प्रोडक्ट। सो जब हम प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो इसमें क्या करते हैं, इट इज द आइडिया that consumer will favor products that offer most quality, performance and features। बाकी स्टूडेंट्स हम अगले वीडियो में चलते हैं।